Good morning, dear students. Today we will discuss the second chapter of history, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is the third lecture. In a previous lecture, I told you that after French Revolution, how the people of France, and not only the people of France, how the people of rest of Europe, that is Italy, Germany, Russia, they wanted to change their society. They wanted to transform their society. They wanted to create a nation. Okay, so when they tried to create a nation with equal rights for all the citizens, the next question came, how should be the society structured? What should be the structure of the society? In this video, we will discuss about socialism in Europe. So socialism in Europe means before the French Revolution, before the people of France, even if the people of Europe, they wanted to transform their society, change their society, mostly the properties were owned by the private or individual. That is the capitalist, that is the ideology philosophy of capitalism. And the socialists, they were against the private property because they saw the private property as the root of all social ills of the time. Root of all social ills means, according to the socialist, when the property is owned by an individual or a private party, then the motive of that industrialist or capitalist was to earn more and more profit out of it. And he would never pay any attention for the betterment of the condition of the workers, for the improvement of the condition of the workers, for the development of the workers. क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि people, they started migrating from village to town in search of job, in search of employment, but their working condition was very miserable, very bad. Their working hours were so long, their wage was so less, they were living in an unhygienic condition, they were not having sanitation, proper drinking water. So according to the socialist, जब तक इंडस्ट्रीज या प्रॉपर्टी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में है, तब तक वर्कर्स की कंडीशन की कोई भी सुधार नहीं हो सकता है. That is why they were against the socialist, they were against the private property. तो उस टाइम क्या था, सोशलिस्ट का भी अलग अलग विजन ऑफ फ्यूचर थे, अलग अलग सोशलिस्ट थे, अलग अलग सोशलिस्ट के अलग अलग विजन अबाउट द सोसाइटी भी था. उनमें से रॉबर्ट ओवेन, जो कि एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, अकॉर्डिंग टू हिम द सोसाइटी में कोऑपरेटिव कम्युनिटी शुड बी बिल्ड. कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब क्या है, कोई भी काम कोऑपरेटिव मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल शुड डू. लोग ग्रुप में काम लोगों को करना चाहिए, एंड आफ्टर डूइंग वर्क इन ग्रुप the product will be produced, and after that the profit of that production will be divided among the members of that group or of that community, a cooperative. That is why he built a cooperative community called New Harmony in Indiana. It was in USA. कुछ लोगों का, कुछ सोशलिस्ट का मानना था कि ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, इट इज गुड, बट कोऑपरेटिव सिस्टम विल ओनली बी सक्सेसफुल if government interfere in this matter, or only with the encouragement of the government the cooperative system can only be a successful one. उनमें से लुइस ब्लैंक थे,
जिनको लगता था कोऑपरेटिव सिस्टम तो गुड है, सोसाइटी फॉर अ सोसाइटी कोऑपरेटिव सिस्टम इज वेरी गुड एंड यूजफुल, बट जब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सिस्टम को एनकरेज नहीं करेगी, तब तक कोऑपरेटिव सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एंड गवर्नमेंट को ही ये जो कैपिटलिस्ट थिंकिंग है या कैपिटलिज्म है, इसको सोशलिज्म से रिप्लेस करना है। एंड ये अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्सो कोऑपरेटिव्स में जितने भी लोग होंगे, द कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल who produced goods together and divided the profits according to the work done by the members. जो जितना काम करेंगे उसके हिसाब से प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिलेगा। This was a school of thought. This was, you can say, a vision, yeah, or some socialist vision of some socialist about the society. और कुछ सोशलिस्ट थे, दैट इज द कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल, उन्होंने एक और आइडियोलॉजी या आइडिया एड ऑन किया था। उनके हिसाब से जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मोस्टली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में द फैक्ट्री ओनर्स, द इंडस्ट्री ओनर्स, दे इन्वेस्ट कैपिटल्स और दे इन्वेस्ट मनी इन द फैक्ट्रीज। जब वो इन्वेस्ट करते हैं और उनमें से जो प्रॉफिट आता है, द होल प्रॉफिट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट्स। बट कौन उनके लिए काम करते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्रीज में काम कौन करते हैं? द वर्कर्स। एक्चुअली द वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड they are earning the profit, but the share of profit was going to the capitalist. वर्कर्स प्रॉफिट कमा रहे थे, वर्कर्स गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उसका जो शेयर है, हिस्सा किसके पास जा रहा था? वो जा रहा था कैपिटलिस्ट के पास। एंड द कैपिटलिस्ट दे नेवर बॉदर्ड अबाउट द डेवलपमेंट, दे नेवर बॉदर्ड अबाउट द ग्रोथ, about the better facilities of the workers. उन्होंने कभी बॉदर ही नहीं किया था। They tried to exploit the workers. Who? The capitalists tried to exploit the workers. They tried to earn more and more profit out of it. तो इसलिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल का मानना था, ये जो वर्कर्स की कंडीशन है, ये exploitation by the capitalist, this can only be removed, this can only be reduced if the society is governed, if the society is controlled by the state, by the government. और जो भी सोसाइटी का प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, रिसोर्सेज है, the people, they have equal right on it. This is a ideology of socialist. तो मार्क्स ने क्या बोला है कि जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जितने भी वेल्थ है, जितने भी रिसोर्स है, this should be controlled by the state, by the government, instead of controlled by an individual or private player. That is what it was the meaning of communism. So Marx, he gave the idea of communism and he visioned a communist society. And उन्होंने वर्कर्स को कन्विंस्ड भी किया था कि आप अगर अपनी जो कंडीशन है, if they wanted to improve their condition, then they had to overthrow the capitalists. That is why the workers, they started movement against the factory owners, against the industry owners. After that क्या आया था? Support for socialism. तो अभी सोशलिज्म का स्प्रेड होने लगा यूरोप में, नॉट ओनली इन फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया में सोशलिज्म का जो आइडिया था, आइडियोलॉजी था, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द यूरोप। अब इसके सपोर्ट में क्या हुआ? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सोशलिज्म के सपोर्ट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन का
फॉर्मेशन हुआ था। और जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1870 में। सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप एंड द फर्स्ट organization was set up, international body was set up to support the socialist thinking, and the name of that organization was the Second International. इसके बाद not only in France, Germany में, England में, the people they started forming association to support socialism, and they started collecting fund to help the members of those association. उस एसोसिएशन में जितने भी मेंबर्स है उनको हेल्प करने के लिए प्रॉब्लम के टाइम में, बिकॉज दे वर गेटिंग वेरी लेस वेजेस, बहुत कम वेज मिलता था, उससे उनका गुजारा नहीं होता था। कभी बीमार पड़ जाते तो मेडिसिन के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो इसलिए जो भी एसोसिएशन के या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते थे जर्मनी में, इंग्लैंड में, वो अपने आप फंड इकट्ठा करते थे जिसको ज़रूरत पड़ती थी, तो उस टाइम उस वर्कर्स को हेल्प करते थे। एंड नॉट ओनली दैट, these associations, these organization, they started demanding for reducing the working hours. They started demanding the increasing of the wages and the voting rights. ये जो एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, ये वर्कर्स, एक्चुअली दोज वर द वर्कर्स एसोसिएशन, वर्कर्स एसोसिएशन फॉर व्हाट? टू सपोर्ट सोशलिज्म इन यूरोप। अब ये जो वर्कर्स एसोसिएशन फॉर्म हुए थे वो डिमांड करने लगे, क्या डिमांड करने लगे? वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करना है, देन वेजेस को इंक्रीज करना है, एंड नॉट ओनली दैट, वोटिंग राइट ऑफ द वर्कर्स। और जर्मनी में क्या हुआ था, ये जो वर्कर्स एसोसिएशन था जर्मनी में, ये वर्कर्स एसोसिएशन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मन के जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इट वाज पॉलिटिकल पार्टी, इसके साथ मिलके वो लोग काम करते थे। एक्चुअली जो वर्कर्स पार्टी, द सेकेंड इंटरनेशनल बोलो या वर्कर्स एसोसिएशन, दोज वर नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टीज, दोज वर द एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का एसोसिएशन था, वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? टू सपोर्ट सोशलिज्म, टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, टू हेल्प द वर्कर्स, द मेंबर वर्कर्स इन डिस्ट्रेस। लेकिन जर्मनी में ये जो वर्कर्स एसोसिएशन था, इट वर्कड विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, और ये पॉलिटिकल पार्टी को वर्कर्स एसोसिएशन ने हेल्प किया था इलेक्शन में भी। और इसके बाद 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट क्या है? ये जो वर्कर्स पार्टी, वर्कर्स एसोसिएशन है, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, दोज वर नोन एज ट्रेड यूनियनिस्ट। तो सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट दोनों मिलके 1905 में लेबर पार्टी का फॉर्मेशन किया था ब्रिटेन में। द लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन इन 1905 with the help of socialist and trade unionist, and फ्रांस में हुआ था सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, and up to you can say 1914 तक सोशलिस्ट पार्टी यूरोप में कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, बट द सोशलिस्ट पार्टी दे ट्राइड देयर बेस्ट टू गिव अ शेप ऑफ द सोसाइटी, to change the society, to form a society on the basis of, on the ideology of socialism, and they tried a lot. So this was the story how socialism spread throughout the Europe. यूरोप में सोशलिज्म का कहाँ से शुरुआत हुआ था और कैसे स्प्रेड किया था, we have seen। तो हमने इसमें क्या देखा है कि अलग अलग सोशलिस्ट व्यू भी थे लोग। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के हैव अ क्विक रिकैपिटुलेशन ऑफ दिस पोर्शन।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 3 वर्ड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद द होल यूरोप दे वांटेड टू ट्रांसफॉर्म, दे वांटेड टू चेंज देयर सोसाइटी। इसलिए अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स भी थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे। द मोटिव ऑफ ऑल दोज पीपल, बट मोटिव क्या था? टू चेंज द सोसाइटी, बट द वे वाज डिफरेंट। इसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पॉजिटिव साइड भी था। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था? मेन एंड वुमेन, चिल्ड्रन, दे वर गेटिंग जॉब, बिकॉज दैट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। पीपल वर फेसिंग सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, so people they started migrating from village to town in search of job। लेकिन टाउन में भी सिचुएशन बहुत अच्छा भी नहीं था। एक बार काम मिलने के बाद भी उनका वर्किंग कंडीशन बहुत खराब होता था। देन देयर वेज वाज वेरी लेस, देयर वर्किंग आवर वाज वेरी लॉन्ग, कोई सैनिटेशन नहीं था, प्रॉपर अनहाइजेनिक कंडीशन में वो लोग रहते थे। तो उस टाइम जो रेडिकल्स एंड लिबरल्स थे उनको लगा अगर ये जो वर्किंग कंडीशन अगर इम्प्रूव करना है तो they had to create a nation, they had to create a nation with equal rights। तो उस मूवमेंट में वर्कर्स ने भी रेडिकल्स एंड लिबरल्स का साथ दिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थ्रू आउट द यूरोप में जब नेशन क्रिएशन का आइडिया एस्टेब्लिश हुआ, उसके सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इट वॉज अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए भी अलग अलग सोशलिस्ट का वर्शन, विजन अलग अलग था। जैसे कि रॉबर्ट ओवेन के हिसाब से एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी होना चाहिए, दैट वाज व्हाई ही एस्टैब्लिश्ड द न्यू हार्मनी इन इंडियाना। उसके बाद लुइस ब्लैंक के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी इट शुड बी एनकरेज्ड, it should be helped, it should be encouraged by the interfered by the government, otherwise cooperative society cannot be a successful one। उसके बाद कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल ने भी एक न्यू थ्योरी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, दैट वाज द कम्युनिज्म। मार्क्स केम अंडरस्टूड कि ये जो वर्कर्स का वर्स्ट कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन है, इफ द वर्कर्स को अगर इस सिचुएशन में से बाहर लाना है तो एक कैपिटलिज्म को दूर भगाना ही है। बिकॉज द कैपिटलिज्म में द मोटिव ऑफ द कैपिटलिस्ट वर टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, दे नेवर बॉदर्ड अबाउट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, दैट इज व्हाई ही एस्टैब्लिश्ड कम्युनिज्म। एंड उनके सपोर्ट में थ्रू आउट द यूरोप अलग अलग एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। सेकेंड इंटरनेशनल का फॉर्मेशन हुआ था। जर्मनी, इंग्लैंड में भी अलग अलग वर्कर्स एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। एंड द लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1905 इन ब्रिटेन विद द हेल्प ऑफ सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट। एंड फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस in support of socialism। So I think this much is clear. In our next video, we will discuss the Russian Revolution. Okay, so thank you and have a good day.